welcome to our channel. Now start with this topic states of matter from class 9th chapter 1, and the name of the chapter is matter in our surroundings. As we all know that what is matter? Matter is what is matter? Anything that occupies some space and having some mass. All these are known as matter, means that are having some space and some volume. Those objects or those things are considered as matter, like air, the table, chair, pen, pencil. Means all things that are in our surroundings, all are considered as matter. And now we are going to discuss states of matter. Now we having three states of matter. First one is solid, second one is liquid, and third one is gases. Solid state, liquid state and gaseous state. These are the three states we will discuss in our video. Okay, let us start with first state, that is the solid state. Activity 1.9. Collect the following articles: a pen, a book, a needle and a piece of wooden sticks. What we have to do? We have to collect a pen, a book, a needle and a piece of wooden sticks. These we have to collect, or we have to collect our nearby things that are easily available. Sketch the shape of the above articles in your notebook by moving a pencil around them. Means हमें क्या करना है, ये चीज़ें कलेक्ट करके पेन, बुक, नीडल एंड पीस ऑफ अ वुडन स्टिक एक पेपर पे हमें उन पेंसिल से आउटलाइन ड्रॉ करनी है. जैसे पेंसिल की आउटलाइन ऐसे आ जाएगी, नोटबुक की, और बुक, पेन, नीडल की ऐसे आ जाएगी आउटलाइन बिल्कुल पतली से. डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम. क्या हमें इन सब की एक डेफिनेट शेप पता लग रही है? एक डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज मीन्स दे हैव अ प्रॉपर बाउंड्री. जैसे अब हमने ड्रॉ किया तो इसकी एक प्रॉपर बाउंड्री हमें पता लग रही है कि हाँ ये पेन की और पेंसिल की प्रॉपर बाउंड्री है. एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम, इनकी एक वॉल्यूम भी फिक्स है. ये नहीं कि हमने इनको पेपर पे ड्रॉ किया तो ये बड़े हो गए या इतने बड़ी शो हो रही है हमें, या अगर हम हाथ में उठाएंगे तो वो वॉल्यूम हमारी कम हो जाएगी. नहीं, दे हैव अ do all these have a definite shape, distinct boundaries and a fixed volume? Yes, the answer is yes. What happens if they are hammered, pulled or dropped? क्या होगा अगर हम उन्हें एक हैमर से बीट करेंगे या हम उन्हें ड्रॉप कर दें, अगर गिर जाए टेबल से, या पुल हम उन्हें खींचते हैं तो क्या होगा? All these capable of diffusing into each others. These are the questions. And first of all, what is this diffusing? Diffusing means diffusion. Diffusion, a diffusion term. Diffusion means moving of particles from high concentration, this is short form of concentration, to lower concentration. This is diffusion. Means the particles, moving of the particles from higher concentration to the lower concentration, it is known as diffusion. And diffusion, examples of diffusion is like
अगरबत्ती और परफ्यूम. Okay, these all are the examples of diffusion. So the question is, all these are capable of diffusing into each other? The answer is no. They compressing them by applying force. Are you able to compress them? We are not able to compress. Means a table, we are not able to compress the table, the wooden table, or the pencil, the pen. We are not able to compress. All the above are examples of solids. We can observe that all these have a definite shape, distinct boundaries, and a fixed volume that have negligible compressibility. These this is a define of a solid. What are the solids? Solids are those particles, or solids are those which have a definite volume, distinct boundaries, a fixed volume, and their compressibility is negligible, or you can say zero, because we are not able to compress the solids. Solids have the tendency to maintain their shape when subjected to outside force. Means when we apply some force on the solid things or objects, they maintain their shape. Means again, that compressibility, we are not able to compress the solid things. Solids may break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. मीन्स दे मे ब्रेक, मतलब वो टूट सकते हैं जब हम उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे. अगर हम पेंसिल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो टूट जाएगी, लेकिन उसकी शेप चेंज नहीं होगी. सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी, दैट इज़ दे आर रिजिड. ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. दैट नंबर 1 property is they have definite shape. Second one is they have distinct boundaries. Third one is they have fixed volume. Fourth one is their compressibility is negligible, or you can say zero. Fifth one is they are rigid. Next one is, consider the following. What about a rubber band? Can it change its shape or on stretching? Is it a solid? What about a sugar or salt? When kept in different jars, they take the shape of a jar. Are they solid? Yes. What about the sponge? It is a solid, yet we are able to compress it. Why? The answer is, the rubber band changes shape under force and regains the same shape when we apply some force. When the force is removed, if excessive force is applied, it breaks. Means हमने क्या बोला कि सॉलिड्स के पास एक डेफिनेट शेप होती है. तो यहाँ पे इन्होंने क्या एग्जांपल लिया, ये कंसिडर किए हैं कुछ पॉइंट्स. लाइक रबर बैंड है, रबर बैंड इज़ अ सॉलिड. ओके, बट जब हम उसे स्ट्रेच करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो रही है. लेकिन हमने क्या बोला कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है. तो ये क्या कह रहे हैं कि जो सॉलिड्स होंगे हमारे, मीन्स जो हमारा रबर बैंड है, क्या वो सॉलिड है? तो उसका आंसर है येस. क्या आंसर दिया इन्होंने? रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन्स द सेम शेप when the force is removed. मीन्स जब हम एक्सटर्नल फोर्स, हम बाहर से उसके ऊपर फोर्स जब हम डाल रहे हैं तो वो अपनी शेप चेंज कर रहा है. लेकिन जब हमने फोर्स को रिमूव किया, मीन्स जब हम उसको स्ट्रेच करना हमने उसे बंद कर दिया, तो वो अगेन अपनी उसी शेप में आ जाता है. तो वो एज अ सॉलिड ही कंसिडर होगा. नेक्स्ट वन इज़, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल sugar or salt crystal remains fixed whether we take it in our hand, put it in our plate or in a jar. मीन्स क्या बोला उधर, क्वेश्चन क्या था कि जो हमारा शुगर और सॉल्ट है वो हम अगर डिफरेंट जार में पुट कर रहे हैं, या हम किसी भी प्लेट में डाल रहे हैं, या वो उसकी शेप लेता है. हम जार में डालेंगे तो जार की शेप लेगा, बाउल में डालेंगे तो बाउल की शेप लेगा. लेकिन हमने क्या बोला कि जो सॉलिड्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम. तो यहाँ पे इसकी फिक्स्ड वॉल्यूम क्यों नहीं है? तो ये क्या बोला इन्होंने इधर कि उनकी शेप क्यों चेंज हो रही है? लेकिन आंसर क्या है इधर? यहाँ आंसर ये है, जो क्रिस्टल्स हैं सॉलिड के और मींस जो सॉल्ट के और शुगर के क्रिस्टल्स हैं, वो उनकी जो शेप है वो सेम है. तो वो भी
हमारे सॉलिड्स में ही कंसिडर होंगे। नेक्स्ट वन इज स्पंज। व्हाट अबाउट अ स्पंज? इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कॉम्प्रेस इट। हम स्पंज को कॉम्प्रेस कर सकते हैं, तो क्या कह रहे हैं कि वो फिर भी सॉलिड है। हमने क्या बोला अभी प्रॉपर्टी में कि हमारी जो सॉलिड्स की कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है वो नेग्लिजिबल होती है। तो ये स्पंज का पूछ रहे कि वो सॉलिड है कि नहीं है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? स्पंज हैज़ माइन्यूट होल्स in which air is trapped. When we press it, the air is expelled out and we are able to compress it. मीन्स क्या होता है? स्पंज के अंदर माइन्यूट होल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर एयर ट्रैप होती है। जब हमने उसको प्रेस किया तो एयर बाहर आ गई, जिसकी वजह से हम उसे कॉम्प्रेस कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसको कॉम्प्रेस नहीं करेंगे, एयर उसके अंदर वापस चली जाएगी और वो अगेन एक शेप ले लेगा स्पंज की। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? सॉलिड्स के। तो हमने पढ़ी यहाँ से, हमने 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी अभी सॉलिड्स की। फर्स्ट वन इज़ डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, and then compressibility is negligible, fixed volume, they are rigid. These are the five properties of solids. Now our next one is liquid state. Activity 1.0, collect the following: water, cooking oil, milk, juice and cold drink. We have to collect these things. Containers of different shape. Put a 50 ml mark on each containers using a measuring cylinder and from the laboratory. Means we have to use a measuring cylinder from which we have to measure the equal amount or equal quantity of these water, cooking oil, milk, juice and cold drink. What will happen if these liquids are split on the floor? क्या होगा अगर ये सारा लिक्विड हमारा फ्लोर पे आ जाएगा? तो measure 50 ml of any one liquid and transfer it into different container one by one. Does the volume remains the same? क्या कह रहा है कि हमें मेज़र करना है 50 ml इस लिक्विड का, कोई भी लिक्विड, यू कैन टेक वाटर, एंड हमें वो ट्रांसफ़र करना है डिफरेंट कंटेनर्स में। मीन्स कोई कंटेनर हमारा डिफरेंट शेप्स के कंटेनर में हमें उसको कलेक्ट करके देखना है। तो वो क्या पूछ रहा है? डज़ द वॉल्यूम रिमेन्स द सेम? क्या उसकी वॉल्यूम सेम रहेगी? ये एक्टिविटी हम घर पे भी कर सकते हैं। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन्स द सेम? क्या जो लिक्विड की शेप थी वो सेम रहेगी? नहीं, उसकी शेप तो चेंज होती जाएगी, लेकिन जो उसकी वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगी। जो ये वाला पॉइंट था, ये वॉल्यूम तो फिक्स रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो शेप है वो लिक्विड की चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो हम जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसकी ही शेप ले लेगा। तो यहाँ पे शेप इसकी फिक्स्ड नहीं होती है। When you pour the liquid from one container into another container, does it flow easily? क्या वो easily flow करता है? Yes. No. We observe that liquids have no fixed shape. क्या हमने क्या ऑब्जर्व करा कि जो लिक्विड्स है उनकी शेप क्या है? वो फिक्स नहीं है, बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। ये हम घर पे भी कंसिडर करके देख सकते हैं। अगर हमारे पास 50 ml का मीन्स हमने एक ग्लास में हमने 50 ml वाटर लिया, ये हमने 50 ml वाटर लिया। अगर हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे एक बाउल में, तो उसकी क्वांटिटी तो 50 ml ही रहेगी, लेकिन उसकी शेप चेंज हो जाएगी। अब उसकी इस शेप में आ जाएगा, उसकी वॉल्यूम सेम रहेगी, वॉल्यूम रिमेन्स सेम, वॉल्यूम रिमेन्स सेम, बट इट्स क्वांटिटी its shape changes. So we can consider volume. Liquids have fixed volume, but shape changes. So they are not rigid but can be called fluid. तो हम लिक्विड्स को क्या बोल सकते हैं? फ्लूइड। और वो इजीली फ्लो करते हैं एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में। रेफर टू एक्टिविटी 1.4 and 1.5 where we saw that solids and liquids can diffuse into liquids.
सॉलिड एंड लिक्विड्स डिफ्यूज मीन्स दे हैविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन. सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इजीली डिफ्यूज़ करते हैं. ये हमारा जैसे हमने एक कंटेनर में हम अगर डेटॉल डालते हैं, एक बकेट में हमने डेटॉल डाला तो वो पूरा डेटॉल वो डिफ्यूज़न हमें शो होता है कि वो लिक्विड के पार्टिकल्स दूसरे लिक्विड में कैसे जा रहे हैं. मीन्स लिक्विड के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होता है और जो हमने डाला बाहर से, जो हमने उसमें डाली है, जो सोल्यूट हमने ऐड किया है सॉलिड या लिक्विड करके, वो उसमें ईजिली डिफ्यूज़ हो जाता है into liquids. The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. जो गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में वो भी डिफ्यूज़ होती हैं और डिज़ोल्व होती हैं वाटर में. जैसे कि जो हमारा वाटर होता है, वाटर में क्या, जो वाटर में एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो क्या यूज़ करते हैं, जो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं वो होती है डिज़ोल्व्ड फॉर्म में. डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन वो यूज़ करते हैं. और ये डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कहाँ से, उन्हें वाटर से प्रेजेंट होती है. जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं इन्वायरमेंट में, एयर में, एयर वाली गैसेस वो जाके वाटर के साथ डिफ्यूज़ होके उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट करती हैं वाटर के अंदर. तो जिससे वो जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं दिस ऑक्सीजन. द गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स. ओके, all living creatures need to breathe for survival. The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. जो अभी मैंने बोला कि जो लिविंग एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं वाटर में वो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन यूज़ करते हैं. और डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कैसे होती है, वो कि जो गैस है, गैसियस फॉर्म लिक्विड में डिज़ोल्व होती है. इसको क्या बोलते हैं हम, डिफ्यूज़न. मीन्स वो डिफ्यूज़ हो रही है. जो गैसेस के जो पार्टिकल्स थे, गैसेस के पार्टिकल्स लिक्विड पार्टिकल्स के अंदर वो डिफ्यूज़ हो रहे हैं. लिक्विड्स और गैसेस के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसके अंदर वो इजीली ट्रैप हो जाते हैं, जिससे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो इजीली ब्रीथ कर पाते हैं. We have observed that gases are highly compressible. Thus, we may conclude that solids, liquids and gases can diffuse into liquids. यहाँ से हम क्या conclude कर रहे हैं कि जो solids हैं, liquids और gases हैं वो diffuse करते हैं liquid के अंदर. The rate of diffusion of liquid is higher than that of solids. जो rate of diffusion है वो liquids का हायर है सॉलिड्स के कंपैरिजन में. बिकॉज सॉलिड्स में जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उसमें स्पेस नहीं होता, तो डिफ्यूज़न इजीली हो ही नहीं पाता. लेकिन जो लिक्विड और गैसियस स्टेट के हमारे होते हैं पार्टिकल्स उसमें स्पेस होता है. दैट्स वाई डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी वो अच्छे से शो कर पाते हैं. दिस इज़ ड्यू टू दैट फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज़ कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट. जैसे जो मैंने अभी बोला कि सॉलिड स्टेट्स के अंदर जो सॉलिड स्टेट कैसे बनाते हैं हम, सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, ये बिल्कुल एक कॉम्पैक्ट रिजिड शेप होती है ऐसे, ये कॉम्पैक्ट होते हैं एक दूसरे के अंदर. तो इसमें जब स्पेस ही नहीं है यहाँ पे तो दूसरे पार्टिकल्स कैसे आ पाएंगे. लिक्विड हमारे में स्पेस प्रेजेंट होता है तो इजीली, और ये हमारी हो गई गैसियस स्टेट में और ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है. तो गैसियस और लिक्विड ये इजीली डिफ्यूज़ कर पाते हैं एज़ कंपैरिजन टू दीज सॉलिड्स. नाउ थर्ड वन इज़ द गैसियस स्टेट. हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? Inquire from him how many balloons is able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in the cylinder. Means एक cylinder में बहुत सारे balloons fill हो सकते हैं. Take 300 ml syringe. Activity 1.11. What we have to do? We have to take 3 syringes, 100 ml syringe, and close their nozzle by rubber cork as shown in figure 1.4. Means we have to take this syringe and we have to close their nozzle with this rubber cork. Remove the piston from all the syringe. ये जो ये piston होती है इसको हमें remove करना है. Leaving one syringe untouched, fill water in the second and pieces of chalk in the third. Means one को हमें ऐसे कैसे छोड़ना है उसको पीछे करके, तो उसमें क्या हो जाएगी, गैस ट्रैप हो जाएगी.
और सेकेंड वाले में हमें फिल करना है वाटर, थर्ड वाले में हमें फिल करना है पीसीज ऑफ चॉक। मीन्स फर्स्ट वाले में क्या प्रेजेंट हो गया, गैस, सेकेंड वाले में हमारे में प्रेजेंट हो गई लिक्विड, दैट इज़ जो उसने एग्जाम्पल लिया वाटर का, H2O इज़ वाटर। थर्ड वाले में उसने डाला चॉक, ये हमारा सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। देन इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज, हमें क्या करना है, इस पिस्टन को इंसर्ट करना है, मीन्स हमें फिर से इसको प्रेस करके अंदर की तरफ लेके जाना है। यू मे above apply Vaseline on the piston before inserting them into the syringe for their smooth movement। हम इस पर वैसलिन भी लगा सकते हैं ताकि उसकी मूवमेंट स्मूथ हो जाए, बट ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, हम वैसे भी ट्राई कर सकते हैं इसको। नाउ ट्राई टू कॉम्प्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज, तो हमें क्या करना है, इसको प्रेस करना है। अभी हम वो देखेंगे कि हमें इस एक्टिविटी से क्या ऑब्जर्व हुआ। वट डू यू ऑब्जर्व, इन विच केस वॉज द पिस्टन ईजिली पुश्ड इन, किस केस में ईजिली होगी, फर्स्ट वाले में गैस में, इसमें ईजिली पिस्टन मूव होगी, लिक्विड में फिर लिक्विड सेकंड नंबर पे, एंड देन थर्ड वन इज द चॉक। What do you infer from your observations? We can do it in our home also. We have observed the gases are highly compressible. हमें क्या पता लगा कि हम गैसेस को easily compress कर सकते हैं as compared to solids and liquids. The liquefied petroleum gas, that is LPG cylinder that are used in our homes for cooking, or the oxygen supplied to hospitals in cylinder in compressed gas, compressed natural gas, that is CNG, LPG, liquefied petroleum gas, CNG, compressed natural gas. It is used in vehicles and it is used in houses, in our homes, for cooking food. All these are the compressed form of the gases. Due to its high compressibility, large volume of a gas can be compressed. large volume gas को भी हम मीन्स देखो इसमें इतना स्पेस होता है, ये जो हमने गैस के पार्टिकल्स बनाए हैं इसमें बहुत स्पेस होता है, तो हम इसे पिस्टन की हेल्प से और एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से हम इनको कॉम्प्रेस कर सकते हैं, ये बिल्कुल कॉम्प्रेस हो जाएंगे, तो हम इसमें बहुत सारी गैस ऐड कर सकते हैं। सो दे कैन ईजिली ट्रांसपोर्ट, मीन्स due to its high compressibility, large volume of a gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. We come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there. क्या कह रहे हैं कि हम किचन में एंट्री कर भी नहीं रहे हैं लेकिन हमें पता लग जाता है क्या खाना बन रहा है। वो कैसे पता लगता है, क्योंकि स्मेल से, बाय द स्मेल दैट रीचेज आवर नोस्ट्रिल्स। अब स्मेल से कैसे, क्योंकि जो क्या होता है, गैसेस, एयर प्रेजेंट होती है, एयर क्या है, ये गैस है, एयर के अंदर बहुत स्पेस, जैसे ये गैस का एग्जांपल है ना, ये बहुत स्पेस प्रेजेंट होता है, तो जो वहाँ से जो खाने के पार्टिकल्स आए, वो पार्टिकल्स गैस के थ्रू, एयर के थ्रू मिलके बाहर की तरफ आते हैं, जो कि हमारे नोस्ट्रिल्स में आते हैं और जिससे हमें पता लगता है क्या खाना बन रहा है। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस, ये कैसे आई स्मेल। Now the answer is the particles of the aroma of food mixed with the particles of the air spread from the kitchen. जो फूड का एरोमा था और जो फूड के पार्टिकल्स थे वो मिक्स हो जाते हैं एयर में, किचन की एयर में, जो कि हमारे पास आती है, एंड इवन फर्दर अवे, जो बाहर तक चली जाती है। एयर है, एयर का कोई स्पेस थोड़ी है कि एयर को घर घर में रहना है या उसको इतने किलोमीटर के एरिया में रहना है। एयर तो सारे के सराउंडिंग्स में रहती है ना एयर, तो वो इसीलिए ये जो एरोमा होता है ये पूरा मिक्स हो जाता है, इसीलिए हमें कहीं दूर की भी स्मेल इजीली आ जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो होता है वो हाई होता है। Compare with this, due to the rate of diffusion of solids and liquids, due to high speed of particles and large space between them, gases show the property of diffusing very fast into another gas. तो जो डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी होती है वो गैसेस की होती है सबसे ज़्यादा, फिर आती है लिक्विड्स की, एंड देन सॉलिड में तो डिफ्यूज़न होता ही नहीं है, बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। In the gaseous state, the particles move about randomly at high speed. Due to this random movement, the particles hit each other and also the walls of the container. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the wall of the container.
क्या कह रहा है ये, क्योंकि उसमें स्पेस ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ये एग्जांपल हमारा गैस का, ये स्पेस ज़्यादा प्रेजेंट होता है तो क्या करते हैं, ये जिस भी कंटेनर में होती है तो ये पार्टिकल्स अंदर मूव करते हैं, क्योंकि इनके पास मूवमेंट के लिए ज़्यादा स्पेस होता है, तो ये मूव करते हैं, तो ये जो कंटेनर की वॉल्स होती हैं उस पर भी जाके स्ट्राइक करते हैं ये पार्टिकल्स। तो क्या बोल रहे हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज़ because of this force exerted by the gas particles per unit area on the wall of the container, because जो force exert करते हैं, जो force जो गैस particles का होता है per unit area on the wall of the container, that's why the pressure is exerted by the gas. ओके अब ये देखो, ये सॉलिड पार्टिकल, इसमें बिल्कुल स्पेस नहीं है, ये जो ये बनाया हुआ है इधर बिल्कुल सेम, इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है बीच में। इधर लिक्विड्स में हल्के फुल्की स्पेस होता है जिसमें कि ये स्लो मूवमेंट करते हैं और डिफ्यूज़न हो सकता है। ये हमारे गैस के पार्टिकल्स हैं जिसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इजीली मूव होता है, इसलिए इसकी डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है देन लिक्विड्स एंड देन सॉलिड्स।